Welcome students in my YouTube channel. In previous video we described about the productivity. I hope that all of you clear from this video what is the productivity, what is the primary productivity and what is the secondary productivity. Today we deliver the next topic of ecosystem, that is the decomposition. Okay. Decompositions, how can they are decomposed? Because you know about them, when living organisms are died, what happens? They are decomposed. There are some decomposers are present in the atmosphere which are decomposed the dead and decaying materials. Okay. So inside the decomposition we discuss about the what is the process for the decompositions, which factor affect the decomposition process. All of this we are discussed today. Okay, so let's we start the topic, that is the decompositions. So what is the decomposition? It is the process of breaking down of complex organic matter into inorganic substances like water, carbon dioxide, nutrient by decomposers. Okay, this is the जो decomposers होते हैं which are breaking down of the complex organic matter into the inorganic substances, water and carbon dioxide and nutrient by decomposers. That is clear. इसको डिकम्पोज करते हैं. डिकम्पोज कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं. डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? माइक्रोब्स, जस्ट लाइक ए फंगस, बैक्टीरिया, that are decomposer. We are decompose the dead and decaying materials. Clear? We also say that it is the physical and chemical breakdown of complex organic remains with the help of organisms called decomposers. In terrestrial ecosystem, upper layer of soil is the main site of decompositions. इकोसिस्टम में जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है सॉइल का, दिस द formed by the decomposers, means that is the decompose the dead and decaying material, that is formation of upper layer of soil. upper most of soil जो होता है वो that is formed through the decomposers. Normally you say that is the humus. Clear? And decomposers, which material they are decomposed? So there is the detritus. What is the detritus? It is the raw material for decompositions. Decomposition के लिए जो raw material होता है, this is known as the detritus. Clear? It included dead remains of plant, just like a leaf, bark and flower, and animal including fecal matters. Okay, this is the detritus which are decomposed by decomposers. Clear? Okay. In case of decomposition, it is the two type decomposition होता है. और detritus, first we discuss about the detritus. Detritus, there are two types. One is the above ground of the detritus. For examples, above ground जो above ground होते हैं, जैसे leaf है, litter है, dried plant है, pods, remains of animals, their droppings and excretion, ये सभी क्या है? above ground
detritus, and second one is the below ground detritus. For example, dead roots and underground dead animals. This is the below ground detritus. Okay. What is the process of decompositions? Decomposition का process क्या है? The decomposition completely disposes of the whole detritus. It helps in cycling of biochemicals and creating space for newer generation of organisms. ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन होता है दिस द हेल्प करता है फॉर द रिसाइकलिंग ऑफ बायोकेमिकल्स. बायोकेमिकल्स साइकिल जो चलता है उसमें न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग के लिए हेल्प करता है. कंटिन्यूअस वो प्रोसेस बना रहता है. एंड दैट इज आल्सो क्रिएटिंग स्पेस फॉर द न्यूअर ऑर्गेनिजम्स विच आर जनरेट. A number of processes are involved in decompositions. There in some process occur inside the decomposition process. First one, that is the fragmentation. What is the fragmentation? It is the process of breakdown of detritus into smaller particles by detrivores. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म. तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर, जैसे लार्जर पार्ट है एनिमल या प्लांट के पार्ट, दे आर ब्रेक डाउन थ्रू द डेट्राइटस इन टू द स्मॉलर पार्टिकल्स. छोटे पार्ट में उसको डिग्रेड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म. अर्थवर्म दैट इज शोइंग द वन फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस. सेकेंड वन लीचिंग. सेकेंड प्रोसेस है लीचिंग. लीचिंग क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज डाउन इनटू द सॉइल होरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट. तो लीचिंग प्रोसेस क्या है? आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ द सबस्टांसेस, ठीक है, थ्रू द वाटर सॉल्युबल, जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, वो वाटर के साथ मिक्स होकर के क्या होता है, जब रेनफॉल होता है उसके साथ मिक्स होकर कहाँ चले जाते हैं? गोज डाउन, नीचे की तरफ चले जाते हैं. इनटू द सॉइल होरिजन, जो सॉइल होरिजन है वहाँ पर चले जाते हैं. एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट. ओके, और वो न्यूट्रिएंट दे अगेन एब्जॉर्ब थ्रू द प्लांट्स. क्लियर? थर्ड प्रोसेस है कैटाबोलिज्म्स. इट इज द प्रोसेस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ detritus into the simple organic material by the action of bacterial and fungal enzymes, and then their further conversion into the simpler inorganic compounds. The catabolisms, there is a process in which they are degrade of the detritus into the simple organic material. ठीक है, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, जो डेड बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, दैट इज सीक्रेट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द एक्शन थ्रू द इंजाइम्स. यहाँ पे इंजाइम फंक्शन करता है. फंगल इंजाइम्स एट वेज द बैक्टीरियल इंजाइम दैट इज रिलीज होता है, जो उसको डिग्रेड करने का काम करता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करता है पहले. दैट इज कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ठीक है, जैसे बैक्टीरियल प्लांट पार्ट है, तो प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल होता है. तो वहाँ पर जो इंजाइम सीक्रेट करता है बैक्टीरिया के द्वारा, सेलुलेज होता है. क्या करता है? सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर देगा या उसको डाइजेस्ट कर जाएगा. ठीक है, जिससे और जो वेस्ट मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल, वो कम आउट फ्रॉम द सेल्स. फंगल में भी उसी तरह, यदि फंगल है, दे आर डिग्रेड द सेल, प्लांट एंड एनिमल्स. ओके, तो यहाँ पे इंजाइम का फंक्शन है. इन कैटाबोलिज्म सम केमिकल्स आर enzyme released from the bacteria and fungals which are first converted into the material into the degrade the material into the organic material, and then further
ऑर्गेनिक जब में कन्वर्ट होता है, फिर उसको एंजाइम के एक्शन द्वारा दैट कन्वर्ट इनटू द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक जो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है उसमें मटेरियल, उसको वो रिलीज कर देता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द ह्यूमिफिकेशन। व्हाट इज द ह्यूमिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस that leads to accumulation of the dark colored amorphous and colloidal substances called humus, which is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at a very slow rate. Being colloidal in nature, it serves as a reservoir of the nutrient. ह्यूमिफिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस एंड कोलॉइडल सब्सटेंसेस कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, जो प्लांट और एनिमल पार्ट्स हैं, व्हेन दे आर डिकम्पोज्ड विद द माइक्रोब्स, जब वो डिकम्पोज्ड होते हैं, जो न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, दे आर मिक्स विद द सॉइल एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस किसको कहते हो? विच सॉइल दे कंटेन द लार्ज पोर्स आर प्रेजेंट, मीन्स दैट इज द एयरी सॉइल, जिसमें एयर की मात्रा ज़्यादा मिक्स हो। ठीक है, दैट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस ऑफ decomposition, that is the mineralization. It is the process of degradation of humus by microbial action and release inorganic nutrients. ठीक है, तो मिनरलाइजेशन क्या है? जो मिनरल प्रेजेंट है, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस, जो ह्यूमस फॉर्म हुआ है उसमें आपका मिनरल प्रेजेंट है, एंड दिस मिनरल दैट इज द रिलीज इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बाय द माइक्रोबियल एक्शन। जो माइक्रोब्स होते हैं उसके एक्शन के द्वारा वो रिलीज करते हैं, जिससे प्लांट को अगेन दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट, मीन्स देयर इज द शोइंग द बायोकेमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल मीन्स जो कंपोनेंट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन है, ये सब कहाँ आ गए? फिर सॉइल में आ गए, ठीक है, इन द डिफरेंट फॉर्म, और उस नाइट्रोजन को प्लांट अगेन एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये साइक्लिंग कंटिन्यू प्रोसेस चलते हैं। फास्फोरस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन। क्लियर? ओके। फ्रेगमेंटेशन जो प्रोसेस होता है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म्स टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। ये जो 3 प्रोसेस ऊपर के बताए हम आपको, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म्स, यह दे आर अकर इन डेट्राइटस, डेट्राइटस में होता है, while humidification and mineralization takes place during the decomposition of soil। और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन जो होता है ये कब होता है? ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल, जब सॉइल डिकम्पोज का डिकम्पोजिशन होता है, मतलब ह्यूमस का जब डिकम्पोजिशन होता है। क्लियर? अर्थवर्म आर ऑफन रिफर्ड टू एज द फॉर्मर फ्रेंड। क्यों कहा जाता है? इसको पहले भी पढ़ाया गया होगा, क्लास 9th में रहा होगा, कि अर्थवर्म दैट इज आल्सो नोन एज द फार्मर ऑफ फ्रेंड्स। ओके, क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हेल्प इन डिकम्पोजिशन प्रोसेस एज वेल एज लूजिंग ऑफ द सॉइल इन द फील्ड। सॉइल क्या करता है? लूज करता है, तोड़ता है, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर ले आता है, एरिया उसको फॉर्म करता है। जस्ट लाइक किसान भी अपना सीड डालने के लिए क्या करता है? फील्ड को पूरा प्लो कर देता है, ठीक है, लूज करता है। प्लो करने का मतलब क्या है? लूजिंग द सॉइल, जो सॉइल के पार्टिकल उसको तोड़ना होता है, ठीक है, जिससे एयर मिक्स हो जाए। एयर रिक्वायर्ड होती है, एयर मॉइस्चर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सीड जनरेशन। क्लियर? And litter is the type of above ground waste that has been disposed improperly. It consists of both biodegradable and non-biodegradable waste. जो litter होते हैं ये above ground waste होता है,
in which both component are present, biodegradable substances होते हैं as well as the non biodegradable substances are present inside them. Clear? Okay. Next, that is the decomposition process. जो अभी डिस्कस किया डिकम्पोजिशन प्रोसेस, यू सी हियर, डिटेल में देखिए इसको. फर्स्ट यू लीव टेक द ईयर, प्लांट है, ठीक, प्लांट का लीफ फॉल डाउन हुआ. ओके, ठीक, लीफ फॉल डाउन हुआ. ए ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड. Some are eaten by the insect and other animals. Nutrient and energy enter into the food web. ठीक है, ये एनिमल्स है, इसको यूज कर रहा है अपने फूड के रूप में. क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर हो गया. नेक्स्ट, जब इसको डिकम्पोज कर रहा है, just like you see here is the fungus are present, leaf partially consumed by the decomposer. इसको partially डिकम्पोज किया जाता है फंगस के द्वारा. such as fungi and bacteria, they begins to lose form and become litter. ठीक है, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में या स्मॉल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है. और यहाँ दूसरा प्रोसेस है, सम न्यूट्रिएंट्स, यहाँ भी कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं, लीच इनटू द सॉइल बाय द केमिकल एक्शन. यहाँ पे एंजाइम का फंक्शन होता है विच आर रिलीज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एंड फंगल, जो केमिकल रिलीज करता है उसके कारण जो कुछ न्यूट्रिएंट है दे गोज इनटू द सॉइल, वो सॉइल में चले आए. दैट इज क्लियर. और दूसरा जो यहाँ पर जो प्रेजेंट है दैट इज लीव्स पार्शली डिकम्पोज होता है, यहाँ पर बाय द कंज्यूम किया जाता है, पार्शली कंज्यूम्ड बाय द डिकम्पोजेशन सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया. इट बिगिंस टू लूज फॉर्म द बिकम लिटर, लिटर का फॉर्म करते हैं, सॉरी लिटर को फॉर्म होता है. दे अगेन लिटर को जो अर्थवर्म है, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थवर्म, बैक्टीरिया, सॉइल माइट्स, फंगी. ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक रिच सॉइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट है कहाँ चला आया, सॉइल में चला आया. ठीक है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, सभी कहाँ आ गया, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिच सॉइल, मीन्स ह्यूमस का फॉर्मेशन करता है. ह्यूमस दैट कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, दे अगेन एब्जॉर्ब द प्लांट. तो न्यूट्रिएंट का ये साइकिलिंग तरह से चल रहा है, जिसको हम बायोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं. ये स्टेप्स दिया हुआ है आपका डिकम्पोजिशन प्रोसेस का. दैट इज क्लियर. आई होप दैट इज ऑल ऑफ यू क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम. डिकम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस कैसे करते हैं, यू सी हियर, एक एग्जांपल दिया हुआ है. डेट्राइटस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जो 3 प्रोसेस होते हैं इसमें बताया था, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म्स. दैट इज फॉर्मेशन 2 प्रोसेस इसमें होता है. ये 3 प्रोसेस आपका वी डिस्कस हियर, दैट इज द अकर साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस ऑन द डेट्राइटस. ये डेट्राइटस में 3 प्रोसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग एंड कैटाबोलिज्म्स. और जो 2 प्रोसेस है आपका, वाइल द ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन. ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में होता है. ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है, मिनरलाइजेशन से जो मिनरल प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ये सभी रिलीज हो जाते हैं विच आर मिक्स, दैट इज मिक्स इन द ह्यूमस. ह्यूमस में ही प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दैट इज फॉर्म थ्रू द decomposition process, or that is formed through the decomposers when they are degrade the dead and decaying materials. Okay, next one is the factor which affect the decomposition process. The rate of decomposition of detritus depends upon the chemical quality of detritus, temperature, soil moisture and soil pH. ठीक है, जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो ये इस पर डिपेंड करता है. क्लियर.
तो हाउ कैन दे affect? First one we discuss here the temperatures. A soil temperature of 25 degrees Celsius and more hastens decompositions, taking from a few weeks to a few months for complete mineralization and humidifications. ये टेम्परेचर सॉइल का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस कंडीशन पर वो डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोजिशन पूर्ण रूप से कम्प्लीटली डिकम्पोज करने में वीकली 1 वीक भी लग सकता है, मंथ भी लग सकता है. दैट इज क्लियर. एट अ लो टेम्परेचर ऑफ लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस रिड्यूस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन. यदि टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस वो बहुत स्लोली हो जाता है. दैट इज क्लियर. सेकेंड फैक्टर है मॉइस्चर. इट इज द एसेंशियल फॉर द डिकम्पोजिशंस. डिकम्पोजिशन के लिए मॉइस्चर होना आवश्यक है. डिकम्पोजिशन रेट इज वेरी लो इन ट्रॉपिकल डिजर्ट डिस्पाइट प्रेजेंस ऑफ फेवर टेम्परेचर. ठीक है, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ट्रॉपिकल डिजर्ट एरिया में बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ मॉइस्चर कम है. ठीक है, और जहाँ फेवरेबल टेम्परेचर है वहाँ पर वो ज़्यादा डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है. एक्सेसिव मॉइस्चर आल्सो इम्पीड्स डिकम्पोजिशन प्रोबेबली ड्यू टू द एनारोबियोसिस. यदि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, दैट इज आल्सो रिड्यूस द डिकम्पोजिशन प्रोसेस ड्यू टू द एनारोबिक प्रोसेस, जो क्योंकि वहाँ पर एनारोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन इज द pH. न्यूट्रल एंड स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल. यदि न्यूट्रल है, स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल है, आर रिच इन डेट्रीवोर्स. इस वो डेट्रीवोर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है. अर्थवर्म एंड डिकम्पोजिशन माइक्रोब्स, और इसमें इजली वो डिकम्पोज करते हैं. एसिडिटी डिक्रीजेज द नंबर ऑफ डेट्रीवोर्स एंड अर्थवर्म. यदि एसिडिक कंडीशन है, ठीक है, उस कंडीशन में वहाँ पर माइक्रोब्स या डेट्रीवोर्स एंड अर्थवर्म जो होते हैं बहुत कम होते हैं. मीन्स डिकम्पोजन माइक्रोब्स अकर इन स्लाइटली एसिडिक सॉइल, बट विद द राइज इन एसिडिटी देयर नंबर बिगिंस टू फॉल. ओके. नेक्स्ट वन इज द कंपोजिशन. विच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी आर फॉर्म. प्लांट और एनिमल बॉडी किस तरफ बना हुआ है, कंपोजिशन क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है. जैसे काइटिन एंड लिग्निन आर वेरी स्लो गेट टू डिकम्पोज. जो काइटिन होता है बॉडी जिसका बना हो, जैसे आपका इंसेक्ट का जो बॉडी होता है, काइटिन जो होता है, एंड लिग्निन, जो लिग्निन लिपिड प्रोटीन का बना मटेरियल होता है बॉडी का स्ट्रक्चर्स, दे आर वेरी स्लोली टू द गो डिकम्पोज. डिकम्पोजिशन बहुत इसका स्लो होता है. सेल्यूलोज डिकम्पोजिशन टेक्स टाइम. सेल्यूलोज का डिकम्पोजिशन होने में भी टाइम की रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज दे कैन नॉट इजली डिकम्पोज्ड. देयरफॉर डेट्राइटस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिग्निन, काइटिन, सेल्यूलोज विच इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक सुगर डिकम्पोज्ड रैपिडली. ठीक है, जहाँ पर नाइट्रोजन हो, सम अमाउंट में आपका लिग्निन प्रोटीन और लिग्निन काइटिन हो या सेल्यूलोज हो, एंड नाइट्रोजन हो, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे शुगर हो, दे आर इजली या रैपिडली डिकम्पोज हो जाते हैं. नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द एरोबायोसिस. Aerobic conditions are essential for the activity of decomposer organisms because decomposition in oxygen requiring process. Okay? Aerobic condition required होता है, essential होता है for the decomposition because during the decomposition process they require the oxygens. वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है. Aerobiosis reduces decompositions and causes peeling off of detritus. anaerobic प्रोसेस जो हो जाता है उस कंडीशन में जो रेट है डिकम्पोजिशन होने का वो स्लो हो जाता है.
That is clear. So what is the difference between the detrivores and decomposer? अभी जो डिस्कस किए हैं उसके बेस पर आप बता सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, दैट इज नॉर्मली आस्क। ओके, फर्स्ट जो डेट्रीवोर्स है, दे आर एनिमल्स विच फीड ऑन डेट्राइटस। वो एनिमल्स होते हैं जो डेट्राइटस पर डिपेंड होते हैं फीड के लिए। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ्टन नरिशमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स होते हैं जो अपना फूड या नरिशेस दैट इज ऑफ्टन फ्रॉम द ऑर्गेनिक रिमेन्स, मतलब डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स जो ऑफ्टन करते हैं। डेट्रीवोर्स में सेकेंड पॉइंट है, डेट्रीवोर्स इंजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं? दे डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर बाय द सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स ओवर इट। ये क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, किसके थ्रू? बाय द सिक्रेटिंग एंजाइम ऑन देम। थर्ड पॉइंट डेट्रीवोर्स का है, इकोलॉजिकली दे कॉज pulverization or fragmentation of detritus। एंड डिकम्पोजर का थर्ड पॉइंट है, इकोलॉजिकली दे कॉज ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दैट इज क्लियर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द detrivores and decomposition. Hi, okay. I hope that all of you clear about the decomposers. Thank you for watching the videos. Thanks.